गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको जैसे पता है कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर एज वेल. सो वी नो व्हाट इज हीट ट्रांसफर, हाउ डज इट हैपन, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर take place and what are the rules. Okay, so when you people are okay with the heat and work transfer, so you know the what are the energy interactions between system and surroundings. System और surroundings के बीच में कौन से ट्रांसफर्स हो जाते हैं, बाउंड्री ये बाउंड्री पे क्या क्या हो जाता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान, ये चाहे हीट इनपुट हो जाती है या वर्क आउटपुट हो जाता है. ऐसी हीट इनपुट या ऐसी मतलब बाउंड्री में इनपुट या आउटपुट हीट या वर्क का ट्रांसफर होता रहता है. ठीक है, ये आपने समझा कि हीट ट्रांसफर किसको बोलते हैं और वर्क ट्रांसफर किसको बोलते हैं. When you are okay with this, after that we are going to teach about learn about the first law of thermodynamics. Okay, that is the basis of the energy definition. Whenever you have heard about the energy can neither be created nor destroyed, it comes from the first law of thermodynamics, and you will be it is very common to understand. It is very simplistic thing. Okay, you haven't read about it in your books, but you after learning this thing, you will see this is very easy. It is a common thing, but we are observing in our daily lives. Okay, so it is basically very simple to understand, but you have to quantify and write it down mathematically, so it will be easy for you to understand, and you will be able to apply in practical fields as well. Okay, so let me start with the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. You already know about the zeroth law of thermodynamics. Yes, sir. You know about it. You are read about it. And after the zeroth law of thermodynamics, then comes the first law of thermodynamics. Okay. Actually, this is when the scientists discovered this law. It was before the zeroth law of thermodynamics was discovered. Okay. मतलब कि पहले फर्स्ट लॉ ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसको क्वांटिफाई किया था, इसको राइट डाउन किया था. उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वजूद में है. सो अबाउट दिस लॉ द साइंटिस्ट्स नो अबाउट अर्लियर. ओके, देन उन्होंने जब देखा कि जीरोथ लॉ इससे भी बेसिक है, तो उन्होंने फिर जीरोथ लॉ उसका नाम दिया. ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो यहीं से होती है. ठीक है, सो यू नो अबाउट वर्क एंड हीट. The work and heat are both the entities of the same quantity. The work and heat, these are both entities of same quantity. And what is that? That is energy. So either this is work or it is heat. But both are the forms of energy. Either work ho or heat. These are basically the same thing. Basically, energy of heat. Work or heat. These are both same entities of the form called energy. Both are energy. Both are energy. So, in the field of thermodynamics, we need to convert these things interchangeably. We have to convert one to heat to work or heat to work. Okay, or any other forms of energy. So we have to check how it is done and what changes are coming in the system. When we give the heat to the system, what happens in the system? Okay, so we need to understand that. So first I'll take an example of a closed system. I'll take an example of a closed system. You know what is a closed system? A closed system is that system in which no energy interactions takes place. Yes. Okay, neither heat can go inside or outwards. Neither work can be done on the system or work can be extracted from that system. That is known as that's known as an isolated system.
A closed system is that system in which no heat transfer takes place. Okay. So let me continue with the first option dynamics. So I was talking about the closed system. What is the closed system? What happens in the closed system? That we have a system like this. Okay. It has the body. It is adiabatic wall. What does an adiabatic wall means? Not one. So heat cannot be Pass. passing through that wall. Okay. So it is an isolated system. It is an isolated system. So I'll draw a mechanism in it. Suppose I'll insert like a stirrer, like a fan in it. It moves. Okay. So we do a kind of work in it. Like it may be that whip. Okay. So we can do work on it. Let us the inside temperature of the system be T1. Okay. And suppose it is run by an external motor. Okay. It is run by a motor. So when the motor runs, this rotates. Okay. After rotating for a few minutes, when the work is done on the system, what will happen to it? If it is initially at, so no heat is exchanged from outside, or neither heat comes from outside to inside. So if we run the paddle wheel, it's called paddle wheel or stirrer or whip, anything you call it. So when you rotate it, what happens in the system? What may happen? Its temperature may rise. Its temperature may rise. So after few minutes, suppose after rotating the motor for 2 or 3 minutes, we'll observe that temperature has been risen to, like suppose temperature T2. Okay, such that temperature of T2 is greater than T1. Isn't it? So the temperature will rise to T2 from T1. So initially the temperature of the system and surroundings was equal. Okay. Suppose if we remove the wall, the temperature of the system and surroundings will be equal. Because they will interact with the heat and they will come to equilibrium. Yes, sir. Okay. Now when we install the adiabatic wall and rotate the motor, so temperature will rise and it will not decrease itself. Why? Because no heat can be extracted or can be extracted or inserted into it. So its temperature will rise. We will say we have done work on the system. That work I will say, suppose the initial state is called S1, state 1. At state 1 the temperature of the body was T1. Okay? So if I will make a graph like this. Okay? Suppose I will say it is xy. Yeah, it's x, it's y. Okay? Suppose you know every state can be drawn on a graph. Every thermodynamic state of a system can be drawn on a graph. Suppose it was initially lying on at this point, while x represents temperature, or this may represent volume. Okay, so initially the body was at temperature corresponding to this T1. Okay, maybe its volume here is V1. Okay, so when the motor runs, initially it was at T1 temperature. Okay, so it wasn't having the adiabatic wall at that time. So the temperature of the system and surroundings was equal. So when we insert this wall, we do the insulation on it, then we run the motor, the body will, its temperature will rise. Its temperature will rise. So the temperature will rise to temperature T2. So the body will go to another state. The body will go to
another state. Suppose if we go to another state where temperature is T2. I'll draw this like this. Okay. And what we have done? We have done work on the system. W12. We have supplied energy to a motor to this system. So we have given work input to the system. हमने energy provide किया system में. We have provided energy to the system through an external device called motor. That motor may be run from a source of energy called electricity. So energy electricity से आगे मोटर में जाती है, मोटर से जाके सिस्टम में जाती है. उसकी वजह से इसका टेम्परेचर T1 से T2 बन जाता है. ओके, इतना क्लियर है? सो बॉडी पहले टेम्परेचर T1 पे थी और मोटर के घूमने की वजह से इसका टेम्परेचर राइज हो गया, तो इसका टेम्परेचर T2 राइज हो गया. So there is a difference between the states. Initially the body was at state 1 and now it will go to the system state 2. It was state 1. Change in any thermodynamic coordinate, suppose it is either it is temperature or either it is volume. Any change in the thermodynamic coordinate changes the state of the system. Temperature 30 is one state and temperature 40 is another state of the system. Okay, so this is the. Now if we will do a thing, we will remove this wall. We will remove this wall. What will happen eventually? Temperature will rise. It will decrease. Why? It will then will try to equalize the temperature with surroundings. Yes, sir. It will try to equalize the temperature with surroundings. So heat will be rejected from system to surrounding, such that its final equation will be equal to the initial state. So we have supplied work, but what it is extracting then? It is rejecting heat. We are supplying work. It is rejecting heat. So it is type of energy conversion here. We are supplying work. It is giving back energy. So it will go another its own. We are giving work like this. It is going to. So after removing this wall, it is rejecting heat. So that heat rejection is we will call Q to 1 because it is going from state 2 to 1. It was initially going from 1 to 2. Now it is coming back from 2 to 1 because it is coming to again the initial state. So it is constituting a cycle. So eventually we have to remove this thing and install it again and again. So what we are observing that while the quantity of work we are supplying is directly proportional to the heat it is rejecting. अगर हम ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा हीट रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन और ये सिस्टम इनिशियल स्टेट पे वापस आ रहा है. So we can say mathematically if we can do multiple work and multiple heats can be rejected. If we can run 2 motors suppose, so there will be no change in the equation. So we will mathematically कैसे राइट करते हैं इसको लिखते हैं समेशन, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू. सारी जितनी हम वर्क इनपुट दे रहे हैं वो इक्वल होती है हीट कितनी आएगी, बिकॉज जितना जूल्स हम हीट दे रहे हैं या वर्क दे रहे हैं उतनी जूल्स हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा. सिस्टम इनिशियल जैसा था, सिस्टम में कोई हीट एनर्जी एक्यूमुलेशन नहीं हो रही है, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खाली इसमें से हीट इन या क्यू आउट हो रहा है. क्यू इन या सपोज कहीं पे हम हीट इसको दे सकते हैं, व्हील को रोटेट करवा सकते हैं, रेसिप्रोकल करवा सकते हैं. सो हियर वी आर सप्लाइंग वर्क एंड वी आर एक्सट्रैक्टिंग हीट. सो इन मैथमेटिकली इट इज रिटन एज समेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट. In advanced mathematics, we write this like closed integral of work in a cycle equals to summation of Q cycle. इसका मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब भी समेशन होता है और इस सर्कल का मतलब कि साइकिल एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि अगर साइकिल एग्जीक्यूट होने का मतलब कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है.
साइकिल एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि Initial इनिशियल स्टेट और फाइनल final स्टेट, state जब same। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इफ सिस्टम में कोई चेंज आ रहा हो देन वो साइकिल, इफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, वी विल से द सिस्टम इज एग्जीक्यूटिंग अ साइकिल, system is executing a cycle. Here also we, what this symbol means, we are summing the works. Suppose we are having 3 motors, another motor here, another motor here, so we are writing sum of the works, and if it is generating heat 2 times 3 times, we are adding them also. Okay, so here it is not actually equal. Here we have a constant aspect that's called J, that's called Joule's constant. So it is experiment equal to 1, so we neglect it. Okay. Here comes a proportionality constant that is known as Joule's equivalence. It is equal to always equal to 1 joule. Okay. So we will negate it into the equation. So what is this equation? Well, the summation of work equals to summation of Q. This is the first law of thermodynamics. But for a closed system, when the system executes cycle, then this law is known as the first law of thermodynamics. अच्छा, आपको क्या समझ आया इस लॉ से? आपको ये समझ में आया कि जितना हम हीट देंगे सिस्टम को, उसको हम इक्वली अगर हम जितना वर्क करेंगे उसको हम उतनी जूल्स में वर्क में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना हम वर्क देंगे उसको हम उतना हीट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मोटर पे हमने 10 जूल्स का काम किया है और हीट भी हमें 10 जूल्स ही मिल रही है, जितनी हम मोटर में अगर 10 जूल्स हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, यहां से हीट एनर्जी भी 10 जूल्स की ही एक्सट्रैक्ट, इससे ज्यादा नहीं निकल सकती है इसमें से हीट। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसका यही है ना कि जितना एनर्जी दे रहे हैं उतनी हम एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। कोई अगर सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो जितना सिस्टम वैसा का वैसा है, तो जितनी एनर्जी देंगे इस फॉर्म में तो दूसरी फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं, और दोनों एनर्जीज वो इक्वल होती हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डिफिकल्ट है? No sir. अब ये थोड़ा सा बोलने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बात सिंपल है। बात सिंपल ये है कि जितना हम काम करेंगे सिस्टम में एज वर्क, उतना ही हम उस सिस्टम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। In the form of heat, yes sir. इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन एक चीज शर्त है कि सिस्टम साइकिल में होना चाहिए। सिस्टम साइकिल में होना चाहिए। ठीक है, Yes sir. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन अ साइकिल। ठीक है, अब कभी कभार ये वाला साइकिल थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल है। नॉन प्रैक्टिकल मतलब इसको हम ज्यादा, क्योंकि वैसे सिस्टम्स आजकल मार्केट में नहीं होते हैं जिसमें आइडियल काम होता है कि सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे हमारे पास सिस्टम्स होते हैं उनमें सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज तो आती है। ठीक है, अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सपोज ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि अगर हम उसको हीट देंगे तो उसको कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट थर्मोडायनामिकली पॉसिबल दैट वी आर सप्लाइंग 100 joules of heat, so the motor could produce the 100 joules of energy through it. Yes sir. It is the violation of the second law of thermodynamics. It cannot happen. But the complete conversion of work into heat is possible, but the complete conversion of heat into work is not possible. If it does, so this is a violation of the thermodynamics laws. So it means that 100% engine cannot be created. 100% engine cannot be produced is a violation of the second law of thermodynamics. So if we are supplying 100 joules of energy, it cannot be completely converted into 100 kilojoules of work. Okay, I will teach you the later on, but first हमें ये समझना है कि फर्स्ट लॉ होता क्या है। ठीक है, अब ये आपको साइकिल में समझ आया कि जितना हम किसी सिस्टम में हम वर्क देते हैं उतना ही उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर सिस्टम साइकिल में है। इतना तो समझ में आया। ठीक है, अब हम इसमें हम क्या करेंगे काम, ये लॉ आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे जिस सिस्टम में चेंज आता है,
उसमें हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी आएगी, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, आपको समझ आएगा व्हाट हैपेंस। मौजूद तौर अगर आपको मैथमेटिकली लिखना है ना तो ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखो। देखो अगर हम वर्क सपोज हम क्यू इन देंगे, अगर हीट सिस्टम में जाती है तो उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, अगर इसमें हम हीट देंगे ना ऐसे क्यू हीट, मतलब इसको फिर पॉजिटिव लेना है, ठीक है, इसको पॉजिटिव लेना है। अगर इससे हम वर्क लेंगे, वर्क आउट या हीट मगर नहीं, वर्क आउट को पॉजिटिव लेना, हीट इन पॉजिटिव, वर्क आउट पॉजिटिव, ठीक है। अगर वर्क इन नेगेटिव है, क्यों आउट नेगेटिव है, समझ। ये साइन कन्वेंशन याद रखिए, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। साइन कन्वेंशन वर्क क्यों इन पॉजिटिव, वर्क आउट पॉजिटिव, ठीक है। वर्क इन नेगेटिव, क्यों आउट पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला साइन कन्वेंशन याद रखो। चलो ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से, अब आपको प्रैक्टिकल फैसला समझ में आएगा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जितना हम, सुनो एक मिनट कंसंट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने ये पढ़ा जितना हम वर्क देते हैं उतना हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं जब सिस्टम साइकिल में काम करता है, और सिस्टम में साइकिल एग्जीक्यूट करते वक्त कोई चेंज नहीं आता है। वो तो आता है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, ठीक है। अगर हम सपोज कोई वर्क करेंगे सिस्टम पे, ठीक है, उसमें कोई प्रोसेस हो गया उस सिस्टम में, उसकी फॉर एग्जांपल टेम्परेचर T1 है, उसका टेम्परेचर T2 आ गया, ठीक है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं है, तो उस टाइम में क्या थर्मोडायनेमिक्स का जो फसला है एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम करता है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यह है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, जितनी हम हीट देंगे या एनर्जी फॉर्म में वो वहीं पे होनी चाहिए, कहीं पे ना वो गायब होनी चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होनी चाहिए कहीं से, ठीक है। जितनी ही हम एनर्जी देंगे उतनी ही एनर्जी जमा रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर हम घूमे फिरेंगे पैसे जाया नहीं होंगे, मतलब गायब नहीं हो जाएंगे, सब खर्च इसमें उसमें इसमें इस फॉर्म में होंगे, मतलब फिर एंड में जब हिसाब करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ये नहीं कह सकते मेरे को अचानक से पैसे ज्यादा हो गए, जितना होगा उतना ही होगा ना, ठीक है। अगर सपोज आपके पास मैं 1000 रुपए दूंगा, आप पार्लर जाओगे, हेयर कटिंग करोगे और कुछ चीजें लाओगे, ठीक है, जो चीजें लाई उसका तो हिसाब है, लेकिन जो चेंज आया ना उसको भी हमें हिसाब में लेना है। मैं बोलूंगा मैंने 10 रुपए खाने की चीजें लाई, लेकिन मैं जैसे आप सिस्टम हो, आपने पहले खुद की ग्रूमिंग करने के लिए 500 रुपीज स्पेंड किए, ठीक है, बाकी 100 रुपीज का सामान आया, तो इनिशियल आपके पास कितना था 1000 रुपीज, तो इतनी टोटल एनर्जी आपके पास 1000 रुपीज थी, ठीक है। सामान आपने 500 का ही था, फिर आप मुझे मैं आपको बोलूंगा मैंने आपको 1000 रुपए दिए, आपने 500 का ही सामान क्यों लाया, आप बोलोगे खुदा की कसम पैसे मेरे नहीं पड़े, है ना। सो मैं बोलूंगा मुझे हिसाब दे दो, पैसे देगा। फिर जब कैलकुलेट करेंगे, एक तो मैंने टोटल हमारे पास एनर्जी इनपुट था 1000 का, लेकिन
500 हमारा आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो 500 है ना वो इसको अपनी चेंज में चेंज करने में वो भी ऐड होता है। वो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझ आएगा कि ये चेंज भी एनर्जी या स्टोर रहती है। अब मेरी बात अब समझ में आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये ना खुद पे स्पेंड करने का, ठीक है। सो अभी तक जो हम कर रहे थे ना फर्स्ट क्लोज्ड सिस्टम के लिए, क्लोज्ड सिस्टम में खुद में कोई चेंज नहीं आ रही, जितना मैं उसमें दे रहा था उतना तुम उतने का सामान वापस ले आ रहे थे, खुद में चेंज नहीं ला रहे थे। अब खुद में भी चेंज आएगी, मतलब जितना हम इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल जितना हम सपोज वर्क इनपुट देंगे हमें हीट आउटपुट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ जमा होगा उसको देखना है कि वो कहाँ पे है, वो सिस्टम में खुद में जमा रखा होता है, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मैं आपको पहले समझा रहा हूं, आपको इजी हो जाएगा फर्स्ट क्लास समझने में, ठीक है। सपोज मैं आपको ऐसी एग्जांपल दूंगा, मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसको मैं सपोज W वर्क लूंगा, वर्क इनपुट, ये भी एनर्जी है ना, वर्क इनपुट, ठीक है। वर्क इनपुट से क्या होगा, वो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो स्टेट चेंज होती है, ये जरूरी है क्योंकि एनर्जी जाएगी दोबारा नहीं हो जाएगी ना, ये एनर्जी कहाँ जाती है, ये इसको सिस्टम को चेंज करने में खर्च हो जाती है, ठीक है। तो किसी प्रोसेस में एनर्जी देंगे तो कोई ना कोई चेंज जरूर आएगी सिस्टम में। इफ वी सपोज वी प्रोवाइड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क एज वर्क इनपुट, क्यों इनपुट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे अज्यूम करता हूं मैंने वर्क का इनपुट इसमें दिया, या चाहे मोटर इसमें चलाई या इलेक्ट्रिसिटी इसमें दौड़ाई, वर्क किसी भी तरीके से दे सकते हो सिस्टम में। सो देन क्या हो जाएगा कि सिस्टम में एक फॉर एग्जांपल सिस्टम हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यहां से सपोज क्यों आउट दे रहा है, क्यों हीट बाहर जा रहा है, बट एक चीज हम देख रहे हैं कि क्यू डब्ल्यू इनपुट इज ग्रेटर देन क्यू आउटपुट। इसका मतलब जितना हम दे रहे हैं उतनी अमाउंट की हीट बाहर नहीं आ रही है, तो वो कहां चली गई, हमें देखना है ना वो कहां गई। वही जो एनर्जी है ना वो फॉर एग्जाम्पल कितनी है, गायब कितनी हो गई, W माइनस क्यू, W माइनस क्यू होगी उतनी तो गायब होगी ना, वो कितनी गायब होगी, उस चीज को क्या बोलेंगे, उसको हम E बोलते हैं, डेल्टा E बोलते हैं या डेल्टा E बोलते हैं। ये डेल्टा इसका रीजन है, डेल्टा क्यों लिखते हैं, खाली E में लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा चेंज होती है, अब हम टोटल मत बोल सकते हैं, हम बोलते हैं इसमें चेंज एक्स्ट्रा चेंज कितनी आ गई सपोज, तभी हम डेल्टा लिखते हैं, मतलब इसमें जमा कितनी, अगर सपोज में ऑलरेडी कुछ जमा हो गई, मैंने क्यों दिया और उसने क्यों W दिया, मैंने W दिया और क्यों का आउटपुट आया, लेकिन जमा कितना रखा इसने, डेल्टा E मतलब जमा कितना है। फॉर एग्जाम्पल इसके पास सपोज ऑलरेडी कुछ जमा था, हम मत ये बोल सकते कि टोटल इसके पास, हम देखेंगे कि हमारे काम में से कितना एक्स्ट्रा है, उसको तभी हम डेल्टा लिखते हैं। ये समझ में आया डेल्टा किससे, हम अगर टोटल ये मतलब लिखते हैं उसका मतलब है कि टोटल एनर्जी वो इसको अपनी नहीं हो सकती, ठीक है, तभी हम डेल्टा लिखते हैं। और इसी चीज को हम बोलते हैं यहां पे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी क्या है, ये इंटरनल एनर्जी वो है जो ट्रैप हो गई होती है इसी सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम W का इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें क्यों का ही मिला, और मगर जो क्यों ज्यादा था हीट आउटपुट कम मिला, कुछ एनर्जी तो गायब हो गई ना, वो एनर्जी कहां गई, वो सिस्टम में खुद में उसने मतलब एब्जॉर्ब किया है डिफरेंट फॉर्म में, चाहे उसका उससे टेम्परेचर राइज हो गया होगा, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ा होगा, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी आई होगी, उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी आई होगी, उसमें रोटेशनल मोशन आ गई, ट्रांसलेशनल मोशन आ गई, न्यूक्लियर मोशन, कोई भी मतलब उसको हम नहीं बोल सकते वो कैसे उसने स्टोर की होती है अपनी खुद में, लेकिन एनर्जी तो होती है, वो कितनी होती है जितनी कम है हमें, उसी जो सिस्टम ने वो एनर्जी खुद में ट्रैप कर रखी होती है, जो हमें आउटपुट नहीं मिलता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो एनर्जी बैलेंस फिर से ठीक आएगा। फॉर एग्जांपल तो W जितना देंगे वो बराबर होता है सपोज Q
प्लस डेल्टा E है कि नहीं? जितना हमने कितना दिया था W वापस कितना मिला Q और थोड़ा सा उसने ट्रैप कर लिया है ये हो गया। और जो इसी डेल्टा E की वजह से थोड़ा सा एनर्जी स्टोर है सिस्टम में और सिस्टम में चेंज आ गया होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम नहीं है, वहां पे सेम थी ना, यहाँ पे सपोज ए तो हमने सिस्टम पे W वर्क किया तो मिला क्या वापस Q आउटपुट मिला और थोड़ा सा सिस्टम में चेंज वो भी होंगे। सो इस कभी कभार हम इसको कभी कभार ये अनअवॉइडेबल हो जाता है, इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। सपोज अगर हम वर्क करते हैं ये जरूरी नहीं कि ये वाला ये कुछ ना कुछ जमा रखता है, ये अगर कुछ भी करेंगे ये किसी कभी कभी देता है वापस, कभी कभी ये नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल अगर साइक्लिक प्रोसेस तो देगा, अगर इरिवर्सिबल चीज होगा तो ये डेल्टा ई वापस कभी नहीं हो सकता है। इसी तभी हम बोलते हैं असल में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात है, क्यों नहीं हो सकता। अलबत्ता यहाँ पे हम देखते हैं कि एनर्जी बैलेंस ठीक है कि नहीं, जितना हम पैसा दे रहे हैं, जितनी हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, जाया तो नहीं हो रही है, वो बराबर रहती है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से चल अगर नोट डाउन करना है लिख सकते हो। So till now we just have studied about our input was work. Now we will give input as heat. So and we extract the energy output as work. Okay. So this first law of thermodynamic equation will be same, only the sign conventions will be different. So suppose we are giving Q input. We are giving. So necessarily what will happen? So we can extract W as output. Okay. If we are giving Q as input, we can extract W as output. So if the system is undergone a change, if system is so the Q and W will not be equal. Yes, sir. So if the system has undergone a change, so Q and W won't be equal. So if Q is greater than W, while energy has gone, it has gone into the system as an internal energy. It is so Q minus W is equal to delta E. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Q minus W is equal to Delta E. Delta E. So Q can be written as W plus delta E. Okay. So if we have different heat inputs and different work outputs, if we have suppose how the first law of thermodynamics is written. Suppose we can give heat to the system and extract work from the system. If we can also if we give multiple heats, okay, Q1. Suppose if we have this system, we are giving multiple things to this. Q1, extracting Q3, Q4, okay, W1, W2, this is input, this is output, this is W3, okay. So in this case, there are multiple heat inputs and outputs going and different work input at. So is this valid? Okay, this is again valid. So we have only considered the sign conventions. We know from the Q in is positive. If it is in, so we have written Q as positive. It is going in. Okay, sum. It is going out. It is going out. So we have written Q4 as negative. Okay, this is going out. Out is negative. Negative. Yes, sir. Minus Q3. Okay. Again is equal. हमने समेशन किया खाली साइन कन्वेंशन को मद्देनजर रखा. अगर Q out है तो नेगेटिव है, अगर in है तो पॉजिटिव है. वैसे ही हम देखें W के साथ वैसा ही होगा.
अगर W आउट है तो पॉजिटिव है, अगर W इन है तो नेगेटिव है। सो अगर आउट वाला हमें आउट वाले हमें पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है, आउट वाले हमें पॉजिटिव, इन वाले नेगेटिव। W1 नेगेटिव है, W3 तो W3 में पॉजिटिव लिखूंगा, W2 आउट जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, W1 इन आ रहा है तो आउट वाले पॉजिटिव, आउट वाले पॉजिटिव, इन वाला नेगेटिव, आउट वाले पॉजिटिव, इन वाला नेगेटिव, माइनस कर लो। यस यस ठीक है, सर प्लस इक्वेशन सेम है। यहाँ पे मैंने नेट, यहाँ पे मैंने नेट हीट लिखी, यहाँ पे मैंने नेट वर्क लिखा। नेट मतलब माइनस और प्लस को जोड़, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला सिस्टम जब डेल्टा ई आएगा इसका मतलब आप समझ लेना कि सिस्टम में चेंज आ रही है, ठीक है। अगर डेल्टा ई नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम साइकिल में है। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज्ड एंड फॉर सिस्टम undergoing a change. Okay, is this okay? Is there any confusion? No, sir. Thank you very much.